مولا کہ وہ گریا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم میں کس حد تک اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں. عزیزان گرامی, مسکرانا, ہنسنا یہ عیب نہیں ہے, البتہ بہت سی جگہوں پہ عیب بھی ہوتا ہے, لیکن عام طور پہ گناہ نہیں ہے, عیب نہیں ہے. لیکن یہ ہنسنا اور کہا لگانا انسان کو معراج نہیں عطا کرتا ہے, انسان کو بلندی نہیں عطا کرتا ہے. وہ چیز جو انسان کو بلندی سے سرفراز کرتی ہے وہ گریا ہے, وہ آنسو ہے. یہی وجہ ہے آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ جب مصلی عبادت پہ آؤ تو ہنستے ہوئے کہا لگاتے ہوئے آؤ, بلکہ یہ کہا گیا روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے آؤ, تضرع کے ساتھ آؤ, خضوع و خشوع کے ساتھ آؤ. خضوع اور خشوع کی عبادت کو معراج کہا گیا ہے, ہنستے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے باتیں کرنے کو بشر کی معراج نہیں کہا گیا ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی, تو ہنسنا شرافت انسانی کی دلیل نہیں ہے, بلکہ رونا شرافت انسانی کی علامت ہے. گریا شرافت انسانی کی علامت ہے. یہ الگ بات ہے, وہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں مجمع بس وہی سمجھے گا, دوسری طرف نہیں جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آنے کا حکم ہے, مسکرا کے ملنے کا حکم ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو چیز انسان کو معراج عطا کرتی ہے, عبادت میں بلندی عطا کرتی ہے, عبادت میں خلوص کا سبب بنتی ہے, وہ گریا ہے. عزیزان گرامی, آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مولا کائنات جب مصلی عبادت پہ جاتے تھے تو تھر تھر کانپتے رہتے تھے, زاروں قطار روتے رہتے تھے. امام سجاد محراب میں آتے تھے تو آنسو بہاتے ہوئے آتے تھے. پتہ یہ چلا عبادت قہقہوں کے ساتھ نہیں ہوتی, بلکہ عبادت آنسوؤں کے ساتھ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس محل عبادت میں اس فرش اعضا پہ جو مصلی کا قرین ہے, یہ کہا گیا ہے آؤ تو رونے کے ارادے سے آؤ, گریے کے ارادے سے آؤ. اور ہم اپنے سال کا آغاز رونے سے کرتے ہیں, کہے بازی سے نہیں کرتے, ٹھٹے بازی سے نہیں کرتے ہیں, پارٹیوں سے نہیں کرتے ہیں. عزیزان محترم, خداوند عالم کی طرف سے یہ اہتمام بھی کیا گیا ہے. ہم آغاز کرتے ہیں سال کا تو گریہ و زاری سے کرتے ہیں. شاعر نے اس بات کو بڑے اچھے انداز میں کہا, آپ سب کو لطف آئے گا. میرے سینے میں ایک احساس پرنم رکھ دیا دیکھو, میرے سینے میں, توجہ چاہ رہا ہوں, میرے سینے میں ایک احساس پرنم رکھ دیا دیکھو, خدا نے دل میں جانے کون سا غم رکھ دیا دیکھو. پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا. میرے سینے میں نے پہلی عرض کیا کہ میں آج کی مجلس میں صرف اور صرف گریے کے عنوان سے گفتگو کروں گا, جو بہت ضروری ٹاپک ہے, مگر ہم اس پہ گفتگو نہیں کر پاتے پوری مجلس میں. آج کی پوری مجلس کو میں نے وقف کر دیا اسی عنوان کے تحت, گریہ اور عزاداری. عزیزان گرامی, شاعر آواز دیتا ہے, میرے سینے میں ایک احساس پرنم رکھ دیا دیکھو, خدا نے دل میں جانے کون سا غم رکھ دیا دیکھو, خدا نے دل میں جانے کون سا غم رکھ دیا دیکھو. ہم اپنے غم میں بھی شبیر کے غم کو نہیں بھولے, ہم اپنے غم میں بھی شبیر کے غم کو نہیں بھولے. غم شبیر نے زخموں پہ مرہم رکھ دیا دیکھو, غم شبیر نے زخموں پہ مرہم رکھ دیا دیکھو. غم شبیر سے ہے عالم اسلام کا آغاز, غم شبیر سے ہے عالم اسلام کا آغاز. شروع سال میں ماہ محرم رکھ دیا دیکھو, شروع سال میں ماہ محرم رکھ دیا دیکھو. ماہ محرم سے ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے. عزیزان گرامی, تو آدم سے ابتدا ہوئی انسانیت کی, اور یہ ابتدا گریے سے ہوئی ہے, کہے بازی سے نہیں ہوئی ہے. گریے کی بڑی اہمیت ہے, گریے کا بڑا ثواب ہے. عزیزان محترم, اور گریہ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اہل حق کے لیے کیا جاتا ہے, اہل باطل کے لیے نہیں کیا جاتا ہے. فرعونی یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت عظیم ہیں, ہم جب مریں گے, ہم میں سے جب کوئی جائے گا تو زمین و آسمان گریہ کریں گے. قرآن نے آواز دی, فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین. یہ لوگ مر گئے اور نہ ان کے اوپر زمین روئی نہ آسمان رویا, اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. یہ فرعونیوں کے لیے قرآن نے
बपा नहीं होती, तवज्जो, जहाँ हुसैन की मजलिस बपा नहीं होती, मकीन रोए न रोए मकान रोता है। मकीन रोए न रोए मकान रोता है। सलाम अज़ीज़ान गिरामी, गुफ्तगू बहुत सी अर्ज़ करनी थी मगर मेरा वक्त खत्म हो रहा है, लिहाजा बात को समेटने की कोशिश करूंगा बहुत जल्दी। अज़ीज़ान मोहतरम, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि गिरिया शराफत इंसानी की दलील है। गिरिया लोगों को अपनी तरफ लाता है, गिरिया अपनी तरफ जज्ब करता है। कहबाजी से लोग जज्ब नहीं होते हैं, बल्कि गिरिया लोगों को जज्ब करता है। आप यहाँ से बाहर निकल जाएं, दरवाजे पे आपको कोई हंसता हुआ नजर आए, कहा लगाते हुए नजर आए, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, हंसते हुए इंसान से आप रुक के नहीं पूछेंगे हंसने की वजह क्या है। मैं कुछ कर रहा हूँ, हंसने की वजह क्या है, लेकिन दरवाजे पे कोई रोता हुआ नजर आ जाए तो शराफत इंसानी आपको रोकेगी दरवाजे पे और आप पूछेंगे भाई रोने का सबब क्या है। मैं कुछ कर रहा हूँ, पता है चला इंसान हंसने का सबब नहीं पूछता, रोने का सबब जरूर पूछता है, रोने की वजह जरूर पूछता है। अज़ीज़ान गिरामी, दुश्मन इस राज को समझ चुका है कि रोने का सबब पूछा जाता है, इसीलिए हमारे गिरिये पे फतवे लगते हैं, हमारे गिरिये पे फतवे लगते हैं, इसलिए कि जब सबब पूछेंगे आप रोने वाले से तो सबब बताएगा रोने की वजह क्या है। 1400 साल बाद भी जब हुसैनियों से रोने का सबब पूछा जाता है तो यजीदियत के चेहरे से नकाब हटाते हैं, यजीदियत के चेहरे से नकाब हटाते हैं। मैं फिर 4 मिसरे अर्ज़ कर दूं, शायर आवाज देता है, मेरे अश्कों से भला आप परेशान क्यों हो, मेरे अश्कों से भला आप मेरे साथ आ गए तो 4 मिसरे सुन लीजिए, आप मेरे साथ आ चुके हैं, शुक्रगुजार हूं। मेरे अश्कों से भला आप परेशान क्यों हो, यही अंदाज तो कातिल का पता देता है। मेरे अश्कों से भला आप परेशान क्यों हो, यही अंदाज मेरे अश्कों से भला आप परेशान क्यों हैं, यही अंदाज तो कातिल का पता देता है। अपना दामन मेरे अश्कों से बचाए रखिए, वैसे पानी है मगर आग लगा देता है। बल्कि जालिम के चेहरे से नकाब हटाते हैं। ये है आंसू की अहमियत, ये है आंसू की मंजिलत। अज़ीज़ान गिरामी, वो जो एक शेर मंसूब कर दिया गया था, आज शेर की वादी में आ गया हूँ, आपके ज़ौक़ समात को देखते हुए एक शेर जो मशहूर कर दिया गया था, रोए वो जो है मुनकिर शहादत हुसैन के, क्या इस तरह का पहला मिसरा, मुनकिर शहादत हुसैन के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लामा शहीद मोहसिन नकवी ने ऐसे जालिम और बेदीन शायर का जवाब देते हुए शायरी के अंदाज में इरशाद फरमाया, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। वो कहते हैं, अपना कोई मरता है तो रोते हो तो अब कर, तवज्जो चाह रहा हूं, सब किताबें जो जहां है वहीं से मेरे साथ आ जाए। अपना कोई मरता है तो रोते हो तो अब कर, और सिर्ते पैगंबर का कभी गम नहीं करते, और सिर्ते पैगंबर का कभी गम नहीं करते। हिम्मत है तो महशर में पैगंबर से भी कहना, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आप सबको सलामत रखे। अज़ीज़ान गिरामी, गिरिये के सिलसिले में गुफ्तगू की, मगर ये आपका हुस्न समात है कि आपने खुश मौजू को बेहतरीन अंदाज से समात फरमा लिया। कल से मौजू में बात करूंगा तो गिरिये की बड़ी अहमियत है। कहा गया नमाज पढ़ने जाओ तो गिरिया करो, मजलिस हुसैन में आओ तो गिरिया करो। गिरिया रिक्कत कल्ब की दलील है। ये गिरिया अजीजों किसी पे टॉन्ट के लिए नहीं करते, किसी पे तंज के लिए नहीं करते हैं, रिक्कत कल्ब की अलामत पेश करते हैं।
शराफत इंसानी का सबूत देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, रिक्कत कल्ब की अलामत है, दिल की नरमी की अलामत है, संग दिली के खिलाफ अपोजिट है बरक्स से गिरिया। अजीजों, मैं अर्ज करना चाहूंगा, अगर किसी को गिरिया नहीं आता मुसल्ले पे, मेहराब में आने के बाद भी, मुसल्ले पे आने के बाद भी, अपने रब के सामने खड़े होने के बाद भी अपनी खता का इतराफ करते हुए आंखों में आंसू नहीं आता, फर्श हुसैन पे शहादत हुसैनी को सुनने के बाद भी आंखों में आंसू नहीं आता, तो फिर उसके लिए मेरा मशवरा है कि दिल को कैसे हल्का किया जाए, नरम किया जाए। दुआए कुमैल तर्जुमे के साथ पढ़ें, दुआए अबू हमजा सुमाली तर्जुमे के साथ पढ़ें। अज़ीज़ान गिरामी, तर्जुमे के साथ ये दोनों दुआ पढ़ें, आपको खुद ब खुद तरीका आ जाएगा, सलीका आ जाएगा और कल्ब रकीक हो जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, दुआ कीजिए शहजादी से कि परवरदिगार आलम शहजादी के वसीले से तौफीक दे दे कि 10 दिन जो अय्याम अज़ा हैं, फर्श अज़ा पे अल्लाह ने तौफीक दी है, तब आप आए हैं। दुआ कीजिए, आप आ गए हैं तो गिरिये में कोई कमी ना होने पाए, रोने में कोई कमी ना होने पाए। तमन्ना ज़हरा है ना। अज़ीज़ान गिरामी, हर मासूम ने गिरिये की गुफ्तगू की है। इमाम सीधे सज्जाद इसीलिए तो रोते थे ना, करबला के वाक़े के बाद अभी मैंने शेर पढ़ा ना कि कातिल का, जालिम का चेहरा पहचानवाते थे रो रो करके। अजीजों, मुसल्ला इबादत पे आते थे 35 साल करबला के वाक़े के बाद इमाम सज्जाद रोए हैं। इमाम सज्जाद का रोना क्या बेहदफ था, बेमकसद था, बेवजह था? इमाम क्यों रोते थे? इसीलिए तो रोते थे कि लोग पूछते थे रोने का सबब क्या है। आने वाला मिनहाल कूफी कूफे से आया, मदीने में पहुंचा और आने के बाद किसी बक्काल से पूछता है, बक्काल से भनिये से सवाल करता है, सब्जी फरोश से पूछता है, सब्जी फरोश से बक्काल से पूछता है कि इमाम सज्जाद का मकान कौन सा है। एक मकान की तरफ इशारा कर दिया, यही इमाम सज्जाद का मकान है। अली बिन हुसैन का मकान यही है जिसके नाले से परनाले के तरीके से पानी बह रहा है, पानी बाहर आ रहा है। जब वो जाने लगा, उधर से गुजरने लगा, अपने लिबास उठाने लगा, तो सब्जी फरोश कहता है, लिबास मत उठाओ, ये नजीस पानी नहीं है, ये तुम्हारे मौला का आंसू है जो वजू के पानी के साथ मिलकर बह रहा है। जब पानी वजू के लिए आता है तो करबला को याद करते हैं, रोने लगते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत गिरिया करते हैं। अजीजों, जब कुर्बाब करता है, इमाम दरवाजा खोलते हैं, मीनार को देखते हैं, सीने से लगाते हैं। इमाम का चाहने वाला, क्योंकि अहले बैत के ज्यादातर चाहने वाले कूफे में रहे हैं, कल भी और आज भी। मैं कभी और अर्ज करूंगा, कूफे को बनी उमैया बनी अब्बास ने क्यों बदनाम किया है? क्योंकि कूफा आले मोहम्मद का शहर है, हरम आले मोहम्मद कहा गया कूफे को, अमीरुल मोमिनीन का शहर था। सारी दुनिया के सारे उस वक्त के आबाद मुस्लिम शहरों को छोड़ के शहर कूफा पे अमीरुल मोमिनीन ने भरोसा किया था और अपना कैपिटल बनाया था। इमाम ज़माना जब आएंगे तो दुनिया के हजारों शहर होंगे मुसलमान नशीन, मगर सारे शहरों को छोड़ करके जिस शहर पे भरोसा करेंगे वो कूफा होगा, कैपिटल इमाम ज़माना कूफा होगा। अज़ीज़ान, 3 बड़ी जंगें अमीरुल मोमिनीन को फतह याद कराई हैं, जंगों में कामयाबी दिलाई है कूफियों ने। मौला कायनात का साथ दिया है। मदीने से लड़ने आए थे, कभी शाम से लड़ने आए थे लोग, कभी बस कहीं कहीं से लड़ने आए, मगर हर बार कूफे वालों ने अली का साथ दिया और अली किसी जंग में हारे नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, फिर कभी अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह, कूफे की वफादारी 1400 साल की तारीख में जितनी कुर्बानी अहले बैत के नाम पे शहर कूफा ने दी है, उतनी कुर्बानी 10% भी उसकी कुर्बानी पूरी दुनिया ने मिला के नहीं दी है अहले बैत के नाम पे। मैं फिर कभी अर्ज करूंगा, इमाम हुसैन के साथ शहीद होने वाले 72 शोहदा में 60 शोहदा कूफे के थे। अगर 18 बनी हाशिम जो मशहूर कहा जाता है 18 मान ले तो भी बाकी 52 कूफे के थे। ज़ुहैर कूफे के थे, वहबे कल्बी कूफे के थे, हुर कूफे के थे, हबीब कूफे के थे, उसके पहले और मुस्लिम इब्न औसरा कूफे के थे, उसके पहले हानी इब्न उर्वा जो मारे गए हुसैन की मोहब्बत में कूफे के थे, मुख्तार सक़फ़ी उसके बाद मारे गए वो कूफे के थे। तवज्जो है नहीं? सारे कूफी थे जो अहले बैत के साथ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तालीम में दरसगाह में जो बैठते थे शिया ना, वो कूफे के होते थे। क्योंकि कलम जो है बनी उमैया और बनी अब्बास के मुअर्रिखों के हाथों में था।
कूफे वालों ने नाक में दम कर दिया था बनी उमैया और बनी अब्बास की हुकूमत के। लिहाजा इन बनी उमैया के मौरखीन ने कूफे को बदनाम करने के लिए न जाने कैसी कैसी जाली बातें कर डाली। जनाब मुस्लिम किस उन्वान से शहीद किए गए? जनाब मुस्लिम के साथ कूफे वालों ने बेवफाई नहीं की थी। मैं फिर कभी अर्ज करूंगा, जो हमारे यहाँ नस्म में शेर में कई बार आ जाता है, उसको बयान करने का वक्त नहीं, उसे काटने का वक्त नहीं है। बस मेरा वक्त खत्म हो गया, लिहाजा सिर्फ अभी अधूरी बात छोड़कर कर रहा हूँ, जिसको गुफ्तगू करना बाद में कभी गुफ्तगू कर सकता है। 1400 साल में जितनी कुर्बानी, मैं तारीख का स्कॉलर रहा हूँ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, 1400 साल में जितनी कुर्बानी कूफे वालों ने दी अहले बैत के नाम पे, उसकी 10% कुर्बानी पूरी दुनिया ने मिला के नहीं दी है। करबला के वाक़े के बाद खबर पूरी दुनिया में फैली, मदीने तक आई, एक कुर्बानी किसी ने नहीं दी, मगर फौरन सुलेमान इब्न सुरद खुजाई की सरबराही में 4000 शिया सर पे कफन बांध के आए, या लसारात हुसैन का नारा बुलंद करते हुए, और वहां शहीद किए गए, सब के सब मारे गए हुसैन की मोहब्बत में, कूफे में। और मुख्तार सक़फ़ी ने क़याम कूफियों के साथ किया था, और शामियों को, और यजीद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो मदीने से आया था, मलून ज़ियाद इब्न अबी का बेटा यजीद के हुक्म पे, उसको, उसके लश्कर को शिकस्त दी किसने? जनाब मुख्तार सक़फ़ी ने कूफियों का लश्कर बना करके। हमारे नौजवानों को बहुत गुमराह किया गया है। कूफा बाई बर्थ शिया है, कूफा आबाद हुआ है शियों के जरिए से, पैदाइशी शिया है। कूफे में लोग बाद में शिया नहीं बने, कूफा बसा है शियों के जरिए से। चूंकि 600 साल हुकूमत करबला के बाद दुश्मनान अहले बैत की रही, लिहाजा अहले बैत, कलम उनके हाथ में था, ये लिख दिया कूफियों ने हुसैन को मारा। क्यों लिखा? ताकि ये साबित करें कि शियों ने मारा, क्योंकि कूफी शिया थे, और यही फिक्र है जिसका नतीजा मुकदमा है। फर्स्ट स्टेप है कूफे को बदनाम करो, कूफियों ने मारा। सेकेंड स्टेप ये है कि जब ये साबित कर देंगे कूफियों ने मारा, तो कूफा में तो शिया थे, ये साबित कर सकते हैं आसानी से कि शियों ने मारा हुसैन को। आप देख रहे हैं कहां से फिक्र चल रही है। आप में से खास में सुना होगा ये जुमला, जो लोग कहते थे शियों ने मारा हुसैन को, खुद ही मारा, और खुद ही जो है वो अपना वो क्या नाम है, पछतावा मिटाने के लिए मातम करते हैं, अलियाज़ु बिल्लाह। तो मैं फिर कभी अर्ज करूंगा, कूफे के सिलसिले 1 घंटा मुझे चाहिए। कूफा हरम आले मोहम्मद है, हदीस में है ना, हरम आले मोहम्मद है कूफा। इमाम ज़माना कूफे में अपना क़याम करेंगे। अमीरुल मोमिनीन ने सब छोड़ा, कूफे में आ गए। इमाम हसन का कैपिटल कूफा था। अज़ीज़ान गिरामी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बिलाल कूफी आया, और आने के बाद कूफे का इमाम का चाहने वाला आया। तारीख उठा के देखिएगा, मैं इल्मी एतबार से बात कर रहा हूँ, सुनी सुनाई नहीं। आप भी सुने सुनाई बचाइएगा, अगर मेरी बात पे किसी को तहकीक करना हो तो मुतालिया करेगा। आप उठा के देखिएगा मासूमीन के असहाब में, अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत से लेके अभी तक, यानी सन 260 हिजरी तक, इमाम ज़माना तक, मासूमीन के असहाब में जितने असहाब आपको मिलेंगे, उसमें 80% कूफे के हैं, अहले बैत के सहाबी। अज़ीज़ान गिरामी, एक नाम मैं ले रहा हूँ, मिनहाल का नाम आपने सुना होगा, अक्सर मसाइब उलमा पढ़ते हैं। मिनहाल कूफी आया, और मिनहाल ने अंदर इमाम से मुलाकात की। इमाम से जुमला का, मौला आप इतना गिरिया क्यों करते रहते हैं, इतना क्यों रोते रहते हैं? तो जनाब इमाम सज्जाद कहते हैं, तुमने मिनहाल इंसाफ नहीं किया, इंसाफ नहीं किया। याकूब का एक पैसर नजरों से ओझल हुआ था, इतना गिरिया किया कि आंखें सफेद हो गई। मेरे 18 बरादर मेरी निगाहों के सामने मारे गए। अब इमाम वक्त को तसल्ली देना है, और मिनहाल ने जिस जुमले से तसल्ली दी है, उससे बेहतर जुमला कोई नहीं कह सकता था। अज़लो इमाम मिनहाल कहते हैं कि मौला ठीक है कि याकूब रोए गिरिया किया, मगर याकूब के घर की मीरास शहादत नहीं थी, आपके घर की मीरास शहादत है। कितनी अच्छी बात कही ना, तसल्ली देने के लिए, आपके घर की मीरास शहादत है। अब इमाम पलट के कहते, मिनहाल तूने सही कहा कि शहादत हमारे घर की मीरास है, मगर जरा सोच, क्या ये भी हमारे घर की मीरास है कि हमारे सामने हमारी 4 साला बहन को चेहरे पे तमाचे बरसाए जाएं? क्या ये भी हमारे घर की मीरास है कि मेरी निगाहों के सामने मेरे 3 साल के बेटे को ऊंट की पुष्प पे अकेले बांधा जाए?
کہ یہ بھی میری میراث ہے کہ میری ماں اور بہنوں کو بے مکھنوں چادر کر کے بازاروں میں لایا جائے اور ان کا تعارف کرایا جائے؟ منحال کہ یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے کہ میں دیکھتا رہوں اور میرے سامنے ہمارے بابا کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں؟ اللہ اکبر! امام سجاد کے سلسلے سے، گریے کے سلسلے سے بہت سی باتیں چھوڑتا ہوں، آگے بڑھ جاؤں۔ چھٹے امام کا دور ہے۔ جناب ابو اسیر نے کہ گریے میں کوئی اپنے اسٹیٹس کو نہ دیکھے، جو بھی ہے یہاں امام کا نوکر ہے، اور امام کا نوکر سمجھ کر خود کو آیا ہے نا، تو فرش اعضا پہ سب کو بس یہی خیال رکھنا ہے کہ اس در کے غلام ہیں۔ گریہ کیسے کرنا ہے؟ امام صادق کے سامنے امام صادق نے فرمایا من بکا او ابکا، میں پہلے ہی دن گریے کے سلسلے میں فضائل سے لے کے مسائل تک گفتگو کر رہا ہوں کہ 10 دنوں تک آپ جتنا ہو سکے آنسوؤں کا نذرانہ شہزادی کی بارگاہ میں پیش کریں۔ امام نے فرمایا من بکا او ابکا او تباکا لے جد حسین وجبت لہ الجنہ، جو بھی میرے جد حسین کے غم میں روئے یا رلائے یا رونے والوں کی صورت بنائے، اس پر جنت واجب ہے۔ اب وہ امام ان کے سامنے مجلس ہو رہی ہے، ابو اسیر گریہ کر رہے ہیں، ابو اسیر مجلس میں موجود ہیں۔ ابو اسیر بہت بڑے اسٹیٹس کا صحابی ہے۔ امام صادق اور امام باقر کے 4000 سے لے کے 40,000 تک شاگرد بتائے کہ ان میں 6 سب سے بڑے ہیں جنہیں اصحاب اجماع کہا جاتا ہے۔ اصحاب اجماع میں ابو بصیر ہیں، اور ابو بصیر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس ہو رہی، مسائل پڑھے جا رہے ہیں امام حسین کے۔ امام صادق نے ٹوک دیا، ابو بصیر تمہیں کیا ہو گیا؟ میرے جد کے مسائل پڑھے جاتے تم روتے نہیں ہو؟ بہت بڑے اسٹیٹس کے مالک تھے، زمیندار بھی تھے، پیسے والی بھی تھے، مالک تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس تھا، اور دینی رتبہ یہ ہے کہ امام کے شاگرد امام کے صحابی ہیں، سارے رتبوں کے مالک۔ امام نے ٹوک دیا تمہیں کیا ہو گیا؟ تم روتے نہیں ہو؟ حسین کے مسائل پڑھے جا رہے ہیں۔ ابو بصیر نے آنسوؤں کا بھیگا ہوا رومال پیش کر دیا، مولا رو تو رہو، اب کیسے رہوں؟ ایسے نہیں، ابو بصیر شرما کے نہیں، جب حسین کے مسائل پڑھے جائیں تو چیخ کے ایسے رو جیسے میری دادی فاطمہ زہرا چاہتی ہے، جیسے ایک بوڑھی ماں جوان لال پہ روتی ہے۔ اجر و اللہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہونے لگی۔ عزیزان گرامی، 8ویں امام کا دور ہے، 8ویں امام کا دور ہے۔ 8ویں امام کے زمانے میں گریہ کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، دیولی خزائی کو بلا بلا کر کے اشعار سن رہے ہیں مرثیے کے، اور اس میں اپنی طرف سے بھی مرثیے کے اشعار ایڈ کر رہے ہیں ان کے اشعار میں۔ کسی صحابی نے منہار والا سوال 8ویں امام سے کیا، امام رضا علیہ السلام سے، مولا شہادت حسین کو گزرے ہوئے 150 سال گزر گئے اور ابھی تک آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں، اتنا گریہ کر رہے ہیں، اتنا آنسو بہاتے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسَيْتُمُ الْغَدِيرَ، میں عاشور کے لیے اس لیے اہتمام کرتا ہوں تاکہ تم اس طریقے سے جیسے تم نے غدیر کو بھلا دیا ویسے ہی کربلا کو فراموش نہ کر بیٹھو۔ گویا ہمارے اماموں کی تمنا ہے کہ غدیر اور کربلا کو زندہ رکھا جائے، زندہ رکھا جائے۔ عزیزان گرامی، امام زمانہ کے بارے میں ہمارے استاد آیت اللہ وحید خراسانی عجیب بات بیان کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام زمانہ کے لیے یہ ہے، دیکھیں دہر ایک زمانے کی قسم ہے جس میں پورے سارے واقعات پچھلے موجود ہیں، جس میں پلٹا کر کے پیچھے جیسے کیسٹ نہیں ہوتی ہے، سی ڈی نہیں ہوتی ہے، پیچھے پلٹا کے پیچھے کے واقعات دیکھے جا سکتے ہیں۔ امام زمانہ کو اللہ کی طرف سے یہ اختیار ہے کہ دہر میں جتنے واقعات ابھی تک محفوظ ہیں وہ سب امام دیکھ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور امام زمانہ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیکن روایت میں کیا علماء کیا بیان کرتے ہیں کہ امام زمانہ خود بھی روتے ہیں، رونے کا حکم بھی دیتے ہیں، اور روتے خود کیسے ہیں؟ خون سے روتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کسی نے آیت اللہ موسلکین سے پوچھا کہ خون کے آنسو کیسے ایک انسان رو سکتا ہے؟ آیت اللہ موسلکین نے سفید رومال مانگا کہ مجھے دو، سفید رومال لیا، آنکھوں پہ لگایا، تھوڑی دیر دنیا سے ماورا ہو کے نہ جانے کیا سوچتے رہے، اس کے بعد رومال پیش کیا۔ یہ میں نے پہلے علماء سے واقعہ سنا تھا، لیکن بعد میں گجرات احمد آباد میں اشرف کو صاحب کہے پڑھ رہا تھا، وہاں ایک صاحب ہے محمد علی صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری آنکھوں دیکھا یہ حال ہے، میں موجود تھا اس نشست میں جب یہ کرامت ہوئی تھی۔ کہا لاؤ رومال، سفید رومال پیش کیا، تھوڑی دیر آنکھ میں لگایا رہے، واپس کیا، اس پہ خون کے تازہ نشانات تھے۔ آیت اللہ محسن الحکیم کہتے ہیں کہ دیکھو میں معصوم نہیں ہوں، امام نہیں ہوں، مگر میں نے تھوڑی دیر دنیا سے ماورا ہو کے صرف کربلا سوچا، میری آنکھوں میں خون آ گئے۔
तो जो इमाम ज़माना हर रोज करबला का मंजर अपनी आंखों से देखता हो, क्यों ना खून के आंसू रोए। अब इमाम कैसे रोज देखते हैं करबला के मंजर को। अब हमारे उस्ताद फरमाते हैं अयतुल्लाह वहीद खुरासानी कि तहर पे इमाम जाते हैं, नजर डालते हैं हर रोज सुबह। पहली बात तो ये कि इमाम की जो नशिस्तगाह जहाँ इमाम बैठते हैं ना, इमाम की पुष्ट में इमाम हुसैन का वो खून आलूद कुर्ता है जो सुबह जो असर आशूरा हुसैन ने पहना था। और इमाम ज़माना को अल्लाह का हुक्म है, देखो जब इस कुर्ते से ताजा खून जारी हो जाए तो समझ लेना कि ज़ुहूर का वक्त आ गया। नशिस्तगाह ऐसी है। और अब जब सुबह उठते हैं तो रोजाना इमाम का तरीका ये होता है कि इमाम दहर पे नजर डालते हैं, ज़माने को पलटाते हैं और करबला के एक एक मंजर को अपनी आंखों से देखते हैं। वो इमाम ज़माना देखते हैं कि किस तरीके से असगर के गले पे तीर लगा, कैसे कासिम की लाश टुकड़े हुई, कैसे अकबर के सीने पे बर्छी की अनी लगी, कैसे और मोहम्मद को मारा गया, कैसे अब्बास के शाने कलम हुए, कैसे हुसैन घोड़े से सरजमीने करबला पे जख्मों से छूट आते हैं और गिरते हैं। शिमरे में हया हुसैन के सीने पे सवार होके मौला को कत्ल करता है। अजरो को अल्लाह अज़ादारो, मैं आज की तारीख के मसाइब नहीं पढ़ सका, आपने गिरिया कर लिया। सिर्फ एक मंजर पढ़ दूं मदीने से रुखसत का, मजलिस खत्म कर दूं, अपने गिरिया के सिलसिले को अज़ादारो जारी रखना। तारीख कहती है जब हुसैन इब्न अली मदीने से चलने लगे ना, मदीने से चलने लगे आखिरी 28 रजब को, तो उसके बाद काफिले की जिम्मेदारी अब्बास को सौंपी। अब्बास तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, अहले हरम आने लगे, बीबियां ऊंट की पुश्तों पे हमारियों में सवार होने लगी। इतने में अब्बास की आवाज, आखिरी जुमला अब्बास की एक आवाज मदीने की फजा में गूंजी, ऐ मदीने वालों, आज घर से बाहर कदम न निकालना, इसलिए कि आज अली की बेटी फातिमा की जाई घर से बाहर निकलने वाली है। अब देखने वाली निगाहों ने देखा हुसैन इब्न अली एक कुर्सी पे बैठे हुए अब्बास का ये एहतमाम देख रहे थे। इतने में जब घर से एक मुअज्जमा निकलती है ना, उस बीवी को देखने के बाद अल्लाह अकबर, सरदार जन्नत अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। हुसैन सानिए ज़हरा के एहतराम में खड़े हुए, ज़ैनब आई ऊंट के करीब पहुंची, हमारी के नजदीक पहुंची। अब देखने वाले देख रहे हैं, तारीख की निगाहें हैरत में है, चश्मे और हैरत में है। अशरफ अल्लाह खुद आपकी आवाज़ गिरिया पर रहमत नाज़िल करे, चश्मे और हैरत में है। लेकिन अब बीवी जब निकली ना तो एक शाना कासिम ने थामा, दूसरा बाजू अकबर ने थामा, मगर अब्बास नजर नहीं आते। अब जो देखौर से देखा तो क्या देखा, लेकिन जहां से हमारी बेट ज़ैनब सवार हो रही थी, वहां अपने जानुओं को जमीन पे टेके हुए अली का शहजादा बैठा है, आवाज देता है, ऐ शहजादी आइए सवार हो जाइए। शहजादी ने एक कदम अब्बास के जानू पे रखा, दूसरा अभी जमीन पे था। एक मर्तबा अब्बास से कहती है, ऐ मेरे भैया अब्बास, मैं उस वक्त तक हमारी में सवार नहीं होंगी जब तक मुझसे वादा न कर लो। क्या शहजादी जल्दी बोलिए, क्या वादा कर लेना चाहती है? क्या मुझसे वादा करो, जिस तरीके से यहाँ से शान और शौकत के साथ मुझे करबला ले जा रहे हो, उसी शान से वापस लाओगे। अब्बास ने वादा किया, शहजादी अगर शान सलामत रहे तो जिस शान से ले जा रहा हूँ उसी शान से वापस ले आऊंगा। ज़ैनब सवार हुई, मगर अब 11वीं मुहर्रम को ज़ैनब करबला से चलने लगी। न कोई हमारी थी, न कोई महमिल थी। एक मर्तबा